Hello everyone, myself Himanshi. I hope you liked my last video that was regarding that what is UPSC, what is the syllabus, what is the pattern and all that you can see in the description box. Whereas today the key theme of our today's discussion is that how to read the newspaper. What is the relevance of newspaper for the UPSC and even for the other government exams? Now the main question which arises in every student mind is that how to read the newspaper, what to read or what not to read, how to cater the news, how to inculcate those news, those editorials in your answer writing, what is the relevance of the data, the explanation, how you can mention in your essay, mains or any descriptive paper. So we will discuss all those things, all those your doubt. I hope it will be knowledgeable for you. Please like, subscribe and share my video to others. So without wastage, let's start. So as in the last session, we have already discussed that what is GS 1, 2, 3, 4. Why I am showing this screen to you again? This is because if you are not known to your syllabus, the syllabus of your any exam, you will not able to cater the newspaper. You will not able to drive out the things which is relevant for your exam. So for driving the things out of the newspaper, out of the magazine, anything, you need to be crystal clear about the syllabus. So if you are also clear about the main subheads, what are the main subheads, ki what come under GS1, what come under GS2 or GS3 or 4. Like I give you an example, if there is a news regarding Gandhi ji, if his birth anniversary is there or death anniversary is there, if any news regarding Subhash Chandra Bose, they are personalities. If like any revolt like 1857 revolt, if it completed 150 years, 1000 years or 100 years, say anything, so that comes under your history topic. You have to read that editorial or read that news under the heading of GS1. You mark the GS1 and start reading that. You can make notes, you can cut the cuttings, or a better option for the newspaper reading is like you make a small copy, you divide that copy in different subpart as per your syllabus. If any news come, go and write on that page. For example, education editorials usually come in the newspaper, so make 2-3 pages of education, write the first editorial there. Now don't do the copy paste, you just write the key points. I will also tell you how to drive the key points out of the newspaper. I will show you today's newspaper and I will show how to bring the things out of that editorial or newspaper, anything. Same way, if there is some news regarding Lok Sabha, Rajya Sabha, Parliament or Parliament if passes some new law, tenancy laws, if government passes, then that come under GS2. If there is any topic of federalism, that is come under GS2. सेम वे कोई इकोनॉमिक्स की न्यूज़ है तो दैट विल कम अंडर GS3. तो दिस वे यू नीड टू बी segregate the news. You need to be clear in your mind what to read, what not to read. How you will do that, what to read or what not to read, when the syllabus is clear in your mind. Okay, and how it will be cleared in your mind? When you will read it again and again. What is the syllabus? I have already shown you ki this is the prelims syllabus or this is the main syllabus, GS 1, 2, 3, 4. You have to read this. I have already told you, take 2 PDFs of this syllabus and then read that. When you are reading the newspaper, keep the syllabus with you. When you are reading the book, keep the syllabus with you. This is only the key theme which will lead to your success. Okay, so this is just showing the last video things, GS1 syllabus. That is very relevant, that's why I am showing. Now let us come back directly to the newspaper, because the key theme of today's discussion is newspaper. So let us discuss this only. See what I have taken. This is today's newspaper and this is Delhi edition newspaper, The Hindu. You can take any newspaper, not relevant कि The Hindu ही पढ़े. It's my wish कि I like The Hindu, so I read The Hindu. It's your wish कि आपको कौन सा comfortable लगता है, आप वो पढ़िए. Simple. ठीक है. If I tell you about the Delhi edition, it is usually have 14 pages. Maximum it can go to 20 pages. Like it depends when you are in Chennai or in New Delhi edition come separately. If you are in
staying somewhere else, so different number of pages they add or subtract. Usually there are 40 to 20 pages. So I am discussing page by page कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किस पेज में से कितना छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना. See, this is the key notes I would say कि what I have created out of the today's newspaper. But also I will show you today's newspaper for your clear crystal mind कि I have to show you कि what to read basically, है ना. तो हम पेज बाय पेज डिस्कस करें. इफ़ आई टेल यू अबाउट पेज 1, तो पेज 1 इंक्लूड योर नेशन न्यूज़. नेशन न्यूज़ मतलब नेशनली क्या हो रहा है, पूरे हमारे इंडिया की बात करें अगर हम, तो नेशनली क्या क्या हुआ, क्या क्या सरकार की रणनीतियां हैं, मतलब बेसिक आती है. उसमें से आपको कुछ रेलेवेंट होता है, कुछ नहीं होता है. तो यू हैव टू पिक एंड चूज, लाइक दैट्स situation is there. Whereas if you see page number 2 and 3, so page number 2 and 3 are not much relevant, I would say. Why I am saying this include basically the city, जिसका भी आपने न्यूज़पेपर लिया ना, जिस भी एडिशन का, तो उसकी पर्टिकुलरली न्यूज़ आती है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव टेकन दिल्ली एडिशन, तो पेज नंबर 2 और 3 पर क्या आएगा, दिल्ली एडिशन का, दिल्ली का आएगा, कैपिटल के बारे में आएगा. तो कैपिटल में क्या हुआ, कहाँ वैक्सीन ख़त्म हो गई, या कहाँ पर क्या चोरी हुई, ये हुई. तो यू हैव टू नेग्लेक्ट दोज न्यूज़. मैनी स्टूडेंट आर आस्किंग कि मैम क्या पढ़ें न्यूज़पेपर में. तो देखिए, आपको कहाँ चोरी हुई, किसने फांसी खा ली, कौन कहाँ भाग गया, दे आर नॉट रेलिवेंट, दे विल नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम. ठीक है. यू नीड टू कैटर ओनली दोज न्यूज़ जो आपके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया आपको लोकसभा राज्यसभा का, लाइक कोई जुडिशरी की जजमेंट आई है, जुडिशरी ने अगर कुछ बोला है, जैसे मैं आज के न्यूज़पेपर में आपको दिखाऊंगी, तो वो आपको पढ़ने हैं. Then I come back to page number 3. ठीक है. पेज नंबर 2 and 3 both are of city only. So segregated news जो होती है वही पढ़नी है. If दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट कहा है and if it is written on page 3, then you have to read that. ठीक है. देन कम योर पेज नंबर 4. तो पेज नंबर 4, 5, नाउ दीज ऑल पेजेस आर डिवाइडेड एज पर द सेक्शन. मतलब इफ़ यू डिवाइड आवर नेशन इंडिया इन डिफरेंट सेगमेंट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सो इन दिस वे द न्यूज़पेपर इज ऑल्सो डिवाइडेड. पेज नंबर 4 इंक्लूड द न्यूज़ रिलेटेड टू द नॉर्दर्न एरिया एंड द ईस्टर्न एरिया, whereas page number 5 include all the south states news. Now these pages also have such basic news of theft, rape or some other corruption, all these charges, so you have to ignore those. If it is relevant regarding your syllabus, so read, otherwise left. Okay. Then come your page number 6 and 7. They are the most relevant part of any newspaper. Why I am saying this? Because in these 6 and 7 pages, it can be 8 or 9 page also. It depends upon the edition. Okay. So doesn't matter. The thing is कि ऊपर editorial word लिखा है नहीं. पेज नंबर कौन सा है ये रटना नहीं है आपको कि पेज नंबर ये पे आता है, ये पे आता है. ये तो मैं एक आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ. When you will read a newspaper for a week, even you will see the newspaper for a 1 week, just turning the pages, then also आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कौन से पेज पर क्या आ रहा है. ठीक है. Because our mind catches images. When you see the images, when you see this section is this section is this, you already or you automatically understand that. Okay. So 6 and 7 pages are usually related to editorials. Now what is the relevance of editorial reading? It will include various expert views. What it will include, like I have written the whole key concepts here. See, this is what I have written ki why editorial is important. So why editorial is important? It will help you in essay writing. When you have to write an essay in your mains exam, 250 marks का आएगा, 2 essay. ठीक. It improve your English because इतने हाई फाई उनकी vocabulary होती है. You have to open the dictionary with you. Starting के, even starting I would say for 6 months even, you have to regularly open your phone or you have to open a hard copy dictionary to search the words. I would request, please don't skip the words. आज स्किप करेंगे, कल स्किप करेंगे, आप डेली अगर स्किप की एक हैबिट बन जाएगी. अगर आप शुरू से ये हैबिट बना के चलें कि जैसे ही वो वर्ड आया है तो आई हैव टू सर्च. फॉर एग्जांपल एनी वर्ड लाइक स्केप्टिकल वर्ड आ गया,
तो आप सर्च करें उसी दौरान, अगर आपको नहीं पता उसका मतलब, एंड देन फर्दर रीड द एडिटोरियल. इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होगी. बिकॉज इफ यू आर नॉट नोइंग द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द होल सेंटेंस. ठीक है, तो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड. ओके, देन next, where editorial will help you, that will help you in answer writing. What answer writing? In mains, when you have to write subjective paper na, for GS 1 2 3 4, for even for your optional 9 पेपर्स आपको लिखने हैं, सारे आपके सब्जेक्टिव होंगे. तो इतनी इंग्लिश, इतनी सेंस आप कहाँ से लाओगे कि हाउ टू राइट अ गुड आंसर, वो आपकी एडिटोरियल से आएगी. वेयर एज इससे अलावा क्या एडिटोरियल के बेनिफिट्स होते हैं, तो इसके अलावा एडिटोरियल के बेनिफिट्स होते हैं, इट गिव यू डाटा, बना बनाया, इतनी साइट से ढूंढा हुआ. दे आर सो मच एक्सपर्ट पर्सन्स, वो ग्लोबली डाटा निकाल के लाएंगे, इंडिया का डाटा निकल के आएंगे, वो खुद ही कंपेयर करके दे देंगे. जब आपको कोई पकी पकाई खिचड़ी बनी बनाई मिल रही है, तो यू विल कुक योर सेल्फ और जस्ट ईट द बनी बनाई थिंग. So it's better na कि if someone have already done the efforts, so why to turn the wheel again? You can take those things. Like in the constitution also it is clearly said by B.R. Ambedkar. So basically यहाँ पे आपको एडिटोरियल से क्या मिलेगा, आपको वहाँ से डाटा मिलेगा. इवन उसके अलावा आपको आइडिया मिलेंगे. किससे रिलेटेड आइडिया मिलेंगे कि जब भी मैं एक आंसर लिखूंगी या लिखूंगा, तो क्या उसका बॉडी क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसे करना है. कुछ भी मैं एक ऐसे लिख रही हूँ तो उसका इंट्रो कैसे होगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका कंक्लूजन कैसा होगा. वो पूरा का पूरा उन्होंने एक आंसर दे दिया. बिग आंसर मीन्स ऐसे हो गया आपका. शॉर्ट 250 वर्ड्स में भी एडिटोरियल आते हैं, वो आपके शॉर्ट आंसर्स हो गए जीएस के. तो बहुत एक अच्छा आइडिया मिलता है. एंड डोंट एक्सपेक्ट कि एक ही बार में एडिटोरियल एक पढ़ा आपने आर्टिकल और पढ़ते ही समझ में आ जाएगा. नो, इन स्टार्टिंग इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम. स्टार्टिंग में लोगों को अखबार पढ़ने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, बट स्लोली एंड स्लोली इट reduce to 1.5 hour. Even in 1 hour you can read. So this will be completed gradually. This process is gradual. 1 मिनट में कोई कला या स्किल नहीं आती है. इट नीड्स टाइम, इट विल टेक टाइम, लेकिन ये आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगी. सिंपल. ओके, देन नेक्स्ट आपको क्या पता लगेगा एडिटोरियल से, आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी करंट इशू की. लाइक करंट में कुछ भी चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी लॉ चल रहा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लाइक मेंटल हेल्थ. अगर मेंटल हेल्थ की अब कितनी बात हो रही है कोविड में, तो आज मेंटल हेल्थ पे इतना अच्छा आर्टिकल आया है. फॉर एग्जाम्पल लाइक येस्टरडे वॉज वन आर्टिकल रिगार्डिंग द सेक्स वर्कर्स. सो व्हेन आपको लिखना पड़े इनके बारे में, तो आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो. वेयर एज आर्टिकल्स रिगार्डिंग क्वेड ग्रुप या इंटरनेशनल रिलेशन, तो ऑल दैट आर व्हाट कि करंट में जो चल रहा है उसकी एक पूरी एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग से लेकर अब तक क्या हुआ, क्या होना चाहिए, पूरा आपको एक ब्रीफ मिल जाता है वहाँ से. देन it is obviously it is an expert view. They are so much highly qualified persons. उनका आपको पढ़ने की उनकी सोच पता लगती है, क्योंकि हम किसी की सोच कैसे पता लगते हैं कि उन्होंने जो लिख रखा है या उनके बोल से, हाउ दे स्पीक, हाउ दे राइट, यू कैन प्रिडिक्ट देयर स्किल्स, यू कैन गेट सम नॉलेज फ्रॉम देम. ओके, एंड देन आपको और क्या पता लगता है एडिटोरियल से, आपको फ़ायदे नुकसान पता लगते हैं किसी टॉपिक के. दे टेल यू व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, और वे फॉरवर्ड भी इवन एडिटोरियल बता दे. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम टुडे न्यूज़पेपर. देयर इज एन आर्टिकल रिगार्डिंग एजुकेशन and that is written by our union minister Ramesh Pokhriyal. He is right now education minister. तो obvious सी बात है कि कोई सरकार का एक बंदा अपना आर्टिकल लिखेगा, वो भी एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन के ऊपर लिख रहा है, तो वो अपनी बुराई तो करेगा नहीं. तो वहाँ से आपको क्या पता लगे, प्रॉज पता लगे. प्रॉज इज फायदे, पॉजिटिव्स. वेयर एज अब कोई आर्टिकल है, जैसे परसों का मैं एक आर्टिकल लूँ, तो दैट वाज रिटन बाय भूपेंद्र हुड्डा ऑफ हरियाणा, फॉर्मर सीएम. तो ऑब्वियसली वो क्या लिखेगा, वो कमियां लिखेगा सरकार की. तो अब आपको एक बंदे के व्यूज़ मिल गए पॉजिटिव वाले, एक बंदे के व्यूज़ मिल गए नेगेटिव वाले. नाउ मिक्स दोज इन योर फाइनल आंसर. वहाँ पर आपको ये थोड़ी लिखना है कि बाय भूपेंद्र हुड्डा दिस आर्टिकल ऑन दिस डेट ही सेड दिस दिस दिस. नो, same way you are not required to write कि what Ramesh Pokhriyal said.
यू जस्ट इनकलकेट बोथ पॉइंट्स, जो आपको उनके अच्छे लगे रमेश पोखरियाल के, टेक दोज पॉइंट्स एंड राइट डाउन इन योर नोट्स। सेम वे जो आपको भूपेंद्र हुड्डा की बातें लगी, टेक दोज पॉइंट्स एंड ऐड इन योर आंसर, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ एडिटोरियल हेल्प्स यू। इवन फेमस पर्सनैलिटी लाइक सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, इवन नरेंद्र मोदी, दी ऑल दोज पीपल गिव देयर आर्टिकल्स, चिदम्बरम, many famous personality, Amartya Sen, and when you will read the editorial ना, you will see, because ऊपर editorial में जिसने लिखा है उसका नाम, उसकी फोटो भी आती है, लास्ट में उसकी डेजिग्नेशन भी लिखी होती है कि at what post he or she is right now, okay। सो लेट्स मूव अहेड कि ये था आपको पेज नंबर 7 तक बताया कि पेज नंबर 1 जो है उस पर नेशन न्यूज़ आती है, एक ब्रीफ आपको देख लेना चाहिए, वो मोटी मोटी नज़र डाल लेनी चाहिए। सेकंड थर्ड पे थोड़ा थोड़ा ही रेलेवेंट होता है, बहुत रेयर ही कुछ काम का मिलता है। फोर्थ फिफ्थ इन पे भी वही स्टेट की न्यूज़ होती हैं, तो इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होती। देन सिक्स सेवन्थ पेज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बार का होता है। यूजुअली जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, एक मंथ आप अखबार पढ़ लोगे तो धीरे धीरे आपकी टेंडेंसी क्या होगी कि सीधा तुम एडिटोरियल का पेज खोल लोगे। फर्स्ट पेज पढ़ा और उसके बाद डायरेक्ट पीपल शिफ्ट टू एडिटोरियल। तो दिस इज ऑल्सो वे जिससे आपका समय कम लगे, क्योंकि काम का तो मेन यही होगा ना एडिटोरियल पे। सो ये आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस डेवलप होगी, ठीक है। देन कम्स योर पेज नंबर 8 एंड 9। तो पेज नंबर 8 9 में क्या होता है, वहाँ पर जो पेज नंबर 1 में नेशनल की न्यूज़ है ना, उसी को कंटिन्यूशन में, मतलब उसी का एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और जो एडिशन की कुछ और नेशनल न्यूज़ चल रही है वो और जुड़ जाती है। तो 8 9 10 पे बेसिकली यही होता है। देन कम्स योर पेज नंबर 11। तो इसमें आती है वर्ल्ड में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में हैपनिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल इसराइल पैलेस्टीन की अभी लड़ाई चल रही थी पीछे, तो उसकी न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे अभी रिसेंट का था कि श्रीलंका में एक शिप से ऑयल स्पिल हो गया और डिज़ास्टर में काउंट होगा, तो वहाँ पे वो कैसे पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है या ऐसे। तो आपको जस्ट बेसिक पता होना चाहिए, ये नहीं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेना है। ऐसे ही वर्ल्ड की कोई न्यूज़ है जैसे साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, तो साउथ चाइना सी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस ऑल्सो, कि हाउ चाइना इज़ डूइंग द डेप ट्रैप पॉलिसी या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये सब वर्ल्ड में जो भी घट रहा है, या वहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे इलेक्शन हुए हैं और वहाँ पे नई सरकार चुन के आई है, जैसे यूएस की अभी रिसेंटली न्यू गवर्नमेंट आ गई है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई वहाँ पर न्यू गवर्नमेंट आ गई है। इससे क्या होगा, क्योंकि उस पर हमारे इंटरनेशनल रिलेशन निर्भर करते हैं ना, कि अगर वहाँ पर कोई न्यू गवर्नमेंट आई है तो उनके साथ हमारे रिलेशन अब चेंज होंगे। तो ये सब सोचने के लिए आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। देन पेज नंबर 12 इज रिगार्डिंग योर बिजनेस न्यूज़। तो बिजनेस न्यूज़ में मेनली कंसिस्ट ऑफ योर इकोनॉमिक सेक्शन। इकोनॉमिक सेक्शन में बेसिकली आपका क्या आ जाएगा कि कोई भी न्यूज़ है रिगार्डिंग दी इंडस्ट्रियल सेक्टर या रिगार्डिंग द आरबीआई न्यू पॉलिसीज़, वो आपको पढ़ना है। अब ये नहीं पढ़ना है कि कोई कंपनी, महिंद्रा ने अपनी कंपनी बेच दी है, उन्होंने नई पार्टनरशिप कर ली है, और रिलायंस का इस साल प्रॉफिट इतना रहा है। दीज थिंग्स आर नॉट रेलेवेंट। ये आपको विद टाइम पता लगेगी कि ये छोटी छोटी बात इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कैसे पता लगेगी, जब तुम सिलेबस में देखोगी। क्या सिलेबस में मेंशन है रिलायंस कंपनी का बायोडाटा पढ़ के आना या महिंद्रा का पढ़ के आना? नो। तो व्हाई यू हैव टू रीड दैट, है ना। व्हाट यू हैव टू रीड कि आरबीआई से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, आरबीआई ने कोई न्यू पॉलिसी या न्यू स्कीम निकाली हो, दैट इज रेलेवेंट फॉर योर सब्जेक्ट, तो वो पढ़ेंगे आप। सेम वे अगर कोई इंडस्ट्रियल से रिलेटेड कोई डाटा आया है, इंडेक्स आया है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किसमें कितनी रैंकिंग आई है, ये सब। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसे सेग्रीगेट डाउन करना है। सेंसेक्स है, सेंसेक्स बढ़ गया घट गया, ये नॉट रेलेवेंट, ओके। Then your page number 13 14 is regarding your sports news. See, if I talk about specifically about UPSC, sports news are not relevant for UPSC. But if you are having some hobby, because you know कि इंटरव्यू के टाइम पे हमें अपनी हॉबी मेंशन करनी पड़ती है हमारे डैप फॉर्म में, ठीक है। तो when you mention some hobby, obviously the interviewer will ask you the question. If you wrote कि I like to play or watch cricket, तो they will ask you कौन सी क्रिकेट की टीम अभी आईपीएल कहाँ हुए, कौन जीती, कौन सा प्लेयर आपको अच्छा लगता है, विकेट क्या होती है, मतलब दे विल आस्क न्यूज़। तो आपको पता होना चाहिए। सेम वे इफ़ यू से आई लाइक चेस और बैडमिंटन, तो दे विल आस्क न्यूज़ रिलेटेड टू दैट। सो इफ़ यू आर हैविंग सच हॉबी, देन डू रीड दोज रिलेटेड टू योर हॉबी स्पोर्ट्स न्यूज़, not other news, okay।
Then comes your SSC banking if I say. So for SSC banking, yes, स्पोर्ट्स न्यूज़, कोई अवार्ड्स मिले हैं, ओलंपिक्स हुए हैं कहीं पे, या फिर आपकी कोई भी अपॉइंटमेंट हुई है, न्यू सीएम बना है कोई कहीं का, या कैग की कोई डायरेक्टर बन गया है नया, इलेक्शन कमीशन का हेड चेंज हुआ है, यूपीएससी का चेंज हुआ है, ऐसी कोई भी न्यूज़ होती है तो ये एसएससी बैंकिंग में आ जाती है। यूपीएससी ऐसे ही नहीं पूछता है, मतलब फैक्चुअल जो टॉपिक्स होते हैं ना, फैक्चुअल टॉपिक्स, वो यूपीएससी बहुत कम पूछेगा, बहुत रेयर, ठीक है, बहुत कम क्वेश्चंस पे। ज़्यादातर यूपीएससी एनालिसिस बेस्ड, या फिर जो आपके ड्राइव होके निकलते हैं ना, मतलब इससे आपको क्या समझ में आया, डाटा इंटरप्रिटेशन जैसे होता है ना, वो एनालिसिस वाली स्किल्स, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली। फैक्चुअल बहुत कम पूछे जाता है, आई एम नॉट सेइंग बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। आई होप यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आई। ये था एक ओवरव्यू कि पेज नंबर 1 से लेकर और पेज नंबर आपके 14 या 16, 20 जितने भी पेजेस हैं उनमें किस तरीके की खबरें आती हैं, कौन से पेज पढ़ने चाहिए, कौन से नहीं। तो आई गेस आपको एक की कंसेप्ट में ये पता लग गया होगा कि पेज नंबर 1 पढ़ना है हमें नेशनल न्यूज़ के लिए, फिर उसके बाद 6, 7 डायरेक्टली आप जंप भी कर सकते हो, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एडिटोरियल सेक्शन। देन आपको वर्ल्ड की जो न्यूज़ होती है आई गेस 9 कितने पे, पेज नंबर 11 पे आई गेस, तो वर्ल्ड की न्यूज़ पढ़नी ज़रूरी होती है। देन कम्स योर इकोनॉमिक्स न्यूज़ आपको पढ़नी ज़रूरी होती है। तो दिस इज़ द वे। अब आपको लग रहा हो कितने कम से पेज पढ़ने, नो, इसी को पढ़ने में आपको आराम से पहले दिन पढ़ोगे ना, 2.5 घंटे कहीं नहीं गए आपके, अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। अब एक और बात, अब आपकी अगर ये वाला पॉइंट मन में उठ रहा हो कि इंग्लिश बहुत हाई फाई लिखी होती है, मुझे अक्षर नहीं समझ में आते, उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, डिक्शनरी, ठीक है। अगर डिक्शनरी पढ़ के वर्ड मीनिंग निकालने के बाद भी आपको थोड़ा थोड़ा कम समझ में आता है तो ऐसा मत सोचिए कि मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है, मैं बहुत पुअर हूँ, ये वो। एवरेज स्टूडेंट्स ही होते हैं सारे स्टार्टिंग में, जो पेपर क्लियर करते हैं ना, आप रिजल्ट निकाल के देख लो तो एवरेज स्टूडेंट ही जो होते हैं उन्हीं का ज़्यादातर क्लियर होता है। कोई लाइट क्लास जो होती है, हाई फाई बच्चे, उनका नहीं क्लियर होता, उनमें बहुत कम परसेंटेज बच्चे होंगे। तो बेसिकली आपने जैसे डिक्शनरी से पॉइंट आउट कर लिया, या एक बार में मान लो नहीं समझ में आया तो 2 बार पढ़ लो एक एडिटोरियल को। चाहे पूरे दिन में आप मान लीजिए 6 एडिटोरियल आ रहे हैं और 6 में से आप पूरे के पूरे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एक दिन 2 पढ़ लो, बाकी के छोड़ दो। धीरे धीरे अपना स्टेमिना बढ़ाओ। आप जब भी कोई एथलीट होता है या कोई भी आप हॉबी वगैरह ये सब करते हो तो फर्स्ट डे में ही आप बहुत हाई फाई लॉन्ग जंप, हाई जंप ये सब नहीं करने लग जाते हो। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। सेम वे लर्निंग इज ऑल्सो अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे आएगी, ठीक है, समय लगेगा। ओके, आपको क्या रखना है, आपको धैर्य रखना है, आपको पेशेंस रखना है और खुद पर ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है, हार नहीं माननी है। ओके, तो दिस इज सम मोटिवेशनल थिंग्स। नाउ लेट्स मूव अहेड। तो ये मैंने थोड़ा ब्रीफ सा बताया है कि अगर मैं वीकली बताऊं तो हर दिन का ना पैटर्न अलग होता है। मैं ये हिंदू से रिलेटेड ही बता रही हूँ, द हिंदू से रिलेटेड। तो अगर मैं मंडे ट्यूसडे का देखूँ तो उसमें बेसिक होता है, आपके बेसिक एडिटोरियल्स जैसे आते हैं, नॉर्मल आते हैं। मेनली आपका वेडनेसडे को एक पर्टिकुलर पेज जो होता है वो अपॉर्चुनिटी या एजुकेशन से रिलेटेड डाटा होता है, तो वो आप एक थोड़ा नज़र मार सकते हो कि एजुकेशन में क्या हो रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, ये सब। थर्सडे को भी वही बेसिक आता है। फ्राइडे को क्या होता है, जैसे 2 एडिटोरियल के पेज होते हैं, 6th और 7th, तो जो 6th पेज होगा उस पर तो सारे एडिटोरियल आएंगे ही नॉर्मल जैसे आते हैं, लेकिन जो 7th पेज होता है उस पर एक इंटरव्यू आएगा कोई भी टॉपिक पे। जैसे अभी फ़िलहाल अगर मैं बताऊं, पिछले वीक पूरे में जो आपके इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक एक्ट आया है, आईटी एक्ट, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सबको कंट्रोल करने के लिए, उस पर बेस्ड इंटरव्यू आया था। तो हर हफ्ते आपका बदलता रहता है, लेकिन इंटरव्यू सेक्शन आता है कि जो एक्सपर्ट हैं उनके अलग अलग एक्सपर्ट का क्या क्या विचार है, एक इंटरव्यू टाइप पूरा प्रिंटेड वे में वो आता है, ठीक है। देन कम्स योर सैटरडे। सैटरडे को 6th पेज पे नॉर्मल एडिटोरियल आते हैं और 7th पेज पे कोई स्टोरी आती है। दैट इज़ नॉट मच रेलेवेंट और उसको ना पढ़ो तो बिल्कुल काम चल जाएगा,
ठीक है, जो पेज नंबर 7 पे आती है सैटरडे के दिन, ठीक। फिर संडे को जो होता है ना, संडे को एडिटोरियल्स नहीं आते भाई, एक दिन होती है आपकी छुट्टी, तो संडे को एडिटोरियल्स नहीं आते हैं। संडे को 2 अखबार आते हैं लेकिन, ठीक है, संडे को 2 अखबार आते हैं। जो पहला अखबार होता है उसमें पेज नंबर 14 और 15 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेज नंबर 14 पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं, जो भी पूरा एक हफ्ते में मतलब जो भी वो हैपन हुआ तो उससे रिलेटेड न्यूज़ आएंगी। वेयरएज पेज नंबर 15 पर आपका जो भी पूरे वीक में एक जो की टॉपिक चल रहा होगा ना, मेन इंपॉर्टेंट जो की टॉपिक चल रहा होगा उसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। जैसे आईटी रिलेटेड एक्ट की आ गई, या फिर कोई भी इशू है जो चल रहा है, एग्रीकल्चर फार्म बिल का चल रहा हो, या किसी भी टॉपिक जो पूरे वीक चलती रही है बात, तो उसका एक टॉपिक आपका एक्सप्लेन सेक्शन का आएगा। बहुत अच्छा होता है ये ज़रूर पढ़ना। ये इसलिए पढ़ना क्योंकि इसमें ना पूरा शुरू से लेकर और एंड तक जो भी घटना हुई है ना, पूरे एक्सप्लेन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे लक्षद्वीप में अभी आपको शायद इतनी न्यूज़ पढ़ते नहीं हो, तो मे बी आपके ये नहीं समझ में आ रहा हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, ये इतनी न्यूज़ में कहाँ से बोल रही हूँ। आप थोड़े थोड़े न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाओगे ना, आपको सब समझ में आने लग जाएगा, मैं कहाँ से एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं। जैसे अभी लक्षद्वीप का एक इशू चल रहा है कि वहाँ पर जो डीएम आया है या उनका जो एडमिनिस्ट्रेटर आया है मेनली, उन्होंने सारी ना पॉलिसी चेंज कर दी है, जिससे वहाँ रहने वाले लोग ना बड़ा परेशान हैं। तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं या बार बार विरोध कर रहे हैं कि हमें ये रणनीतियाँ, ये पॉलिसी नहीं चाहिए जो आप हम पे लागू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लो उसका एक एक्सप्लेन सेक्शन आता है संडे को, तो उसमें शुरू से समझाएंगे कि लक्षद्वीप इंडिया के पास कैसे आया। ये एक पहला क्वेश्चन, खुद ही क्वेश्चन लिखेंगे, खुद ही आंसर देंगे, खुद ही क्वेश्चन खुद ही आंसर। तो ऐसे करके पूरा एक अच्छा सा एक एक्सप्लेन सेक्शन आता है, उसमें 1-2 टॉपिक जो भी पूरे वीक में रहे हैं उसको पूरा एक्सप्लेन कर रखा होता है। वेरी गुड, ठीक है, तो आप ये पढ़ना। और जो सेकंड 2 न्यूज़पेपर आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया संडे को, तो संडे को जो सेकंड न्यूज़पेपर आता है वो इतना कुछ भी काम का नहीं होता। उसका आप फर्स्ट पेज पढ़ सकते हो। फर्स्ट पेज में बहुत छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं, जो भी वीक में हुआ उसकी बहुत छोटा आपको लिख रखा होगा, ठीक है। उसके अलावा बाकी का जो पेपर है वो रेलेवेंट नहीं होता। वो जब आपका मन करे ना पिक्चर्स देखनी हो हीरो हीरोइंस की, या ऐसे ही खाने की पिक्चर्स, ये सब आता है उसमें, नॉट रेलेवेंट, आप देख सकते हो आपका मन करे तो, ठीक है। तो ये एक प्लान था कि वीकली क्या क्या होता है न्यूज़पेपर में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया है। अब मैं आपको न्यूज़पेपर दिखाती हूँ, ये आज का एडिशन है, दिल्ली एडिशन। अब मैं थोड़ा आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें छोड़नी थी, ठीक है। ये आज का अखबार है। तो देखिए पहली ये आपको, जैसे ये तो क्लियर हो गया पेज नंबर 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, और अलग अलग पेजेस पर क्या है क्या नहीं है, ये आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो अगर मैं पेज नंबर 1 की बात करूं आपको, तो पेज नंबर 1 में जैसे अब ये पहला है, पहला आर्टिकल आपको इससे रिलेटेड बोल रहा है कि वैक्सीन कितने लोगों को लग गई, कितने को नहीं लग गई। ये विद प्रैक्टिस विद एक्सपीरियंस आपको पता लगेगा। अब सीधा खोलते तो तुम शायद लाइन टू लाइन एक एक सारा पढ़ देते, तो वो रेलेवेंट ही नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट करना। आपको यहाँ से क्या पिक करना है, आपको यहाँ से सिर्फ ये पिक करना था, ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है ना आपका ये डाटा। अब इस बॉक्स के डाटा से आपको क्या पता लगता है कि जो हमारी अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें कौन सी स्टेट ऐसी है जो फुल्ली वैक्सीनेट हो गई है, कौन सी स्टेट है जो बहुत ज़्यादा जिसका बुरा हाल है। तो ये सारी न्यूज़ आपको यहाँ से इस पिक्चर से पता लग सकती है। अब यहाँ पे परसेंटेज रेशो के वे में बता रखा है कि आपका जो जम्मू कश्मीर है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गया है। दिल्ली जो है उसका चल रहा है 10.2%। सेम वे अलग अलग है। जैसे आप बिहार का देखो कितना कम है, 2.5। यूपी का भी सेम ही चल रहा होगा, 2% समथिंग। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये डायग्राम बस देख लो। अब आपके मेंस के आंसर में आप इसे कैसे इनकलकेट कर सकते हो, आप ये डाल सकते हो कि भैया कि अगर हम देखें कि कौन सी स्टेट्स पुअर रही या किन्होंने बहुत अच्छी वैक्सीनेशन ड्राइव, इम्यूनाइजेशन में किन्होंने ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट किया, तो आप इस जब ऐसा कुछ आंसर आएगा वैक्सीनेशन से रिलेटेड, वहाँ पर आप इसका डाटा यूज़ कर सकते हो। ये रेलेवेंट था यहाँ पे, बस और कुछ काम का नहीं था। लेट्स मूव अहेड। अब ये 18 लोग मर गए पुणे की फैक्ट्री फायर में, अब ये हमारे पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं है। सेम वे अब 12वीं के पेपर कैंसिल हो गए, ये भी बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बस आपने हेडिंग देखी, देखते ही बस क्या पढ़ना है क्या नहीं वो किसके बेसिस पे डिसाइड कर लोगे, सिलेबस के बेस पे, ठीक। अब नीचे चलिए। अब
मॉल खुल गई, मार्केट खुल गई, अरे खुल गई तो खुल गई, अब पेपर में थोड़ी आएगा कब खुली, किस तारीख को खुली, नॉट रेलेवेंट। तो ऐसे आपको कैंसिल आउट करते चलना है चीज़ों को। अब डोमेस्टिक एयर में किन को अलाउ किया जा रहा है, किन को नहीं किया जा रहा, नॉट रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि 12 आवर हंगर स्ट्राइक हुई लक्षद्वीप में। अगर वैसे देखो तो अब तुम सोचोगे कि स्ट्राइक थोड़ी पूछी जाएगी, किस तारीख को हुई स्ट्राइक, ये वो नहीं पूछी जाएगी, राइट। लेकिन लक्षद्वीप वर्ड आ गया, लक्षद्वीप में क्या हो रहा है, तो बैक में क्या हो रहा है वो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। बिकॉज एक बहुत बड़ा इशू है कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो उस टेरिटरी पे रहते हैं, अगर वो ना खुश हैं किसी चीज़ से, तो उन पर ज़बरदस्ती कोई चीज़ इम्पोज हो रही है, तो ये क्या होना चाहिए डेमोक्रेसी में? नहीं। ऐसा टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया, वहाँ पर आप लक्षद्वीप की पूरी स्टोरी लिख सकते हो, कैसे वहाँ के लोगों ने अपना एजिटेशन शो किया, उसके अगेंस्ट वो खड़े हुए हंगर स्ट्राइक की, या ऐसे ऐसे। तो ये चीज़ आप वहाँ मेंशन कर सकते हो। तो ये आपको एक बैक डोर, जो इसका बैक लक्षद्वीप में जो जो हुआ वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। अब देखो मैंने बताया था पेज नंबर 2 और 3 किससे रिलेटेड होता है, सिटी की न्यूज़ से। अब यहाँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कौन सी दवाई दी जा रही है, मेट्रो खुल गई, कहाँ कहाँ लोग घूम रहे हैं, नॉट रेलिवेंट, स्किप द होल पेज। अब ये वाला पेज देखो, एक एक न्यूज़, ये भी कैपिटल से रिलेटेड है। अब केजरीवाल जी ने बोला है कि हर एक के घर घर पे जाकर और 45 साल से जो बड़े लोग हैं उनको वैक्सीनेशन करेंगे। अब इसको पूरा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हेडिंग पढ़ ली, समझ में आ गया सीधा सीधा कि अच्छा स्टेप है। आप लिख सकते हो कि लोकल बॉडीज़ को पावर दी जा रही है कि वो घर घर डोर टू डोर जाए और लोगों को वैक्सीनेशन दे। दिस इज़ अ गुड स्टेप कि लोग जो हैं वो रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं कि हमें दवाई नहीं लगवानी, उनको भी परसुएड कर सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है, लगवाइए। तो ये एक गुड स्टेप आप लिख सकते हो, लेकिन पूरा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हेडिंग से ही समझ में आ गया कि मेन बात क्या है। सेम वे यहाँ पर कितने केस आए, कितने नहीं आए, नॉट रेलेवेंट। अभी स्ट्राइक वाला इशू हो तो स्ट्राइक वाला कितने टाइम से चल रहा है, एक बार आपको पता लग गया प्रोटेस्ट है, किसके ऊपर है, वो बिल पढ़ लिए बस। अब वो क्या कर रहे हैं, आज के कौन सा धरना है, आज कृषक दिवस मनाया आज, या कोई और बैसाखी बनाई है, 6 महीने हो गए इनको आए, ऐसा ऐसा वो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा ऐसा, ठीक है। सेम में सिसोदिया ने क्या कहा, नॉट रेलेवेंट। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि प्राइवेट स्कूल जो है वो फीस चार्ज नहीं करेंगे या कम करेंगे जो भी। तो अब इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो कहाँ मेंशन कर सकते हो, जैसे कोई एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल आ गया कि कोविड की वजह से एजुकेशन बहुत हैम्पर हुई है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, पॉवर्टी वाले लोग हैं, जो पॉवर्टी स्ट्रिकन हैं, वो तो बिल्कुल ही उनकी एजुकेशन डूब गई। तो वहाँ पर आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि हाई कोर्ट या जुडिशरी के जो जजमेंट आए हैं पिछले कुछ टाइम में, दे आर वेरी मच रेलेवेंट, हाउ दे आर हेल्पिंग दी पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल, यू कैन मेंशन दैट, ओके। देन अब ये वाली न्यूज़ जो है, पेरेंट ऑफ इन्फेक्टेड चिल्ड्रन मे बी अलाउड इनसाइड द हॉस्पिटल। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये आपका किससे रिलेटेड होगा, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। अब एक बात बताइए, मान लीजिए कि आप में से कोई आपके घर में या आपके किसी रिलेटिव का मान लीजिए वो बीमार है, तो अब वो बाहर अंदर तो और ज़्यादा परेशान होगा। कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो बहुत वीक फील करता है, ऐसी सिचुएशन होती है, और आपने आसपास बीमार लोगों को देखकर और परेशान हो जाता है। ही नीड सम मोरल सपोर्ट फ्रॉम द लव्ड वंस। अब यहाँ पर क्या ऑर्डर दिया गया कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो पेरेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, अगर उनको कोरोना हो रखा है तो उनके पेरेंट्स को अंदर अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी घबराए हुए हैं, एंजाइटी है, डर है, तो मेंटल हेल्थ उनकी स्टेबल नहीं है, तो उस टाइम पे पेरेंट्स शुड बी अलाउड विद देम। हाँ, अब इसमें तुम्हारे कॉन्स भी आ जाते हैं, कॉन्स क्या आ जाएंगे, नुकसान क्या आ जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि पेरेंट्स को इन्फेक्शंस हो जाए, फिर कौन संभालेगा, है ना। तो इसके हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान भी होते हैं स्कीम्स के, या कोई बात हुई है, कोई जजमेंट आया है, तो हर में कमी और अच्छाई दोनों होती है। बस ये आपका मोटिव होना चाहिए कि जो कमियां हैं उनको कैसे मिनिमाइज़ करना है, सिंपल। बीइंग अ ब्यूरोक्रेट ऑल्सो यू हैव टू get the skills कि how the disadvantages or cons of the scheme can be minimized, okay। अब और कुछ यहाँ पर रिलेवेंट नहीं दिख रहा है, कहाँ पर चोरी हुई, किसका मर्डर हो गया, नॉट रेलेवेंट। ये जो साइड नोट ये है आपकी न्यूज़ है ये रही, ठीक। लेट्स मूव अहेड।
अब आपका ये वाला नॉर्थ एंड ईस्ट की न्यूज़, तो नॉर्थ ईस्ट की न्यूज़ अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो हमारी अपोजिशन है गहलोत वो क्या कह रहे हैं या पंजाब सरकार ने क्या कहा, ठीक है। आपस में जो बेसिक बेसिक न्यूज़ होती है, जयपुर के मेयर क्या कहा है कह रहा है, या उड़ीसा की जो पॉजिटिविटी रेट आ रही है वो कितने % आ रही है, पूछा ही नहीं जाएगा कभी भी। तो ये बेसिक सी न्यूज़ है, ऐसे ही आप जस्ट टर्न आउट कर सकते हो, देख सकते हो क्या हो रहा है। हेडिंग पढ़ लो, हेडिंग पढ़ते ही पता लग जाएगा। देन कम्स योर साउथ। अब साउथ में भी जो इम्पोर्टेंट है, अब जैसे ही हाई कोर्ट दिख गया मुझे डायरेक्टली स्ट्राइक हुआ, क्या स्ट्राइक होगा, जुडिशरी स्ट्राइक हुआ, तो मुझे क्या स्ट्राइक हुआ, GS2 स्ट्राइक हुआ। तो मैं देखूंगी क्या कहा हाई कोर्ट ने, तो क्या कहा यहाँ हाई कोर्ट ने कहा कि जो LGBT कम्युनिटी है, LGBT कम्युनिटी में जो IA वाली कम्युनिटी है, IA+, तो इनके लिए अभी कोई भी कानून नहीं बना है, इतने कानून नहीं बनता है। देयर इज़ नीड ऑफ NGO कि वो आगे आए और इस कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए, इनके वेलफेयर के लिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए वर्क करें, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये किस किस एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर मैं GS2 में जाऊँ तो GS2 में मेरा NGO भी एक सिलेबस का पार्ट है, वेरएज जुडिशरी भी एक सिलेबस का पार्ट है। तो ये दोनों के अंडर फॉल करता है ये टॉपिक कि हाँ NGO को बोला गया है कि वो इस LGBTQIA कमेटी, वो जो है लोग हैं उनको हेल्प आउट करें, उनको प्रोटेक्ट करें, उनको एम्पावर करें। और जुडिशरी ने बोला है ये इम्पोज करने के लिए, तो इसलिए जुडिशरी के अंदर भी चला गया कंसेप्ट, तो आपको इसलिए ये पढ़ना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। अब LGBTQ कमेटी क्या, LGBTQ कम्युनिटी क्या होती है, तो बेसिकली जो जैसे लेस्बियंस है, आपके गे हैं, ये क्वीर है, तो ट्रांसजेंडर हैं, ऑल दीज कम अंडर दिस LGBTQ कमेटी, LGBTQ कम्युनिटी, सॉरी, ओके। लेट्स मूव अहेड। तो अब यहाँ पे बीजेपी ने क्या किया, आपस में जो ये चल रहा है वो नहीं पढ़ना आपको। अब RSS ये वाला भी नहीं कोई पढ़ने की ज़रूरत है। ये जो पॉलिटिकल न्यूज़ हो जाती है ना, जब एक ऑपोजिशन लीडर दूसरे ऑपोजिशन लीडर को किसी बात में एवं ही सुना रहा है, पॉलिटिक्स वाली चीज़ें चल रही है, वो रेलेवेंट नहीं होती है, ठीक। कोई पॉलिटिकल मूव चल रहा है कि लोगों को प्रेज़ करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए फ्री में कुछ बांटा जा रहा है, या ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रही है, तो उसको आपको नेगलेक्ट करके चलना है। आप मेंस में वो मेंशन कर सकते हो कि द फ्रीबीज और द वेवर्स, लोन वेवर्स, ऐसी ऐसी स्कीम्स जो सरकार लेके आती है ये अच्छी नहीं रहती है। शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म हमारी देश की प्रोडक्टिविटी को, इफेक्टिवनेस को ये ख़राब करता है, ठीक। तो यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पे डकैती हुई, कि कितने विलेजर्स को मारा किसने, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक। अब आ गया आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कौन है, एडिटोरियल्स। अब देखो, मैं एक एक एडिटोरियल को एक्सप्लेन करूँगी तो पूरा 1 घंटे से ऊपर चला जाएगा, तो मैं एक ब्रीफ आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे। लेट्स जूम। अब ये जो बीच के 2 आर्टिकल्स होते हैं ना एडिटोरियल पेज पे, ये वाला और ये वाला, ये होते हैं बड़े आर्टिकल। एक तरीके से आप ऐसे वे में लिख सकते हो, या आपके जो कीवर्ड्स यहाँ से निकाल कर आप इसे मेंशन कर सकते हो अपने मेंस के आंसर में। जैसे कि अगर मैं इस वाले आर्टिकल की बात करूँ तो ये वाला जो आपका आर्टिकल है, ये बेसिकली किन्होंने लिखा है, ब्रायन बेहल ने लिखा है। ये इसमें बेसिकली किसके बारे में बताते हैं, कोरोना से रिलेटेड यहाँ पे बात है कि कैसे आपको इसका जो फैलने का रेट है उसको कैसे कंट्रोल करोगे। बहुत अच्छा आर्टिकल है, आपको टाइम मिले तो बहुत अच्छे से पढ़ना। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि RO क्या होता है, रिप्रोडक्टिव रेट क्या होता है, कि किन 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, DOTS, ठीक है। मेनली यहाँ पर पूरे इसमें यही बात की है कि कैसे आप इसका ट्रांसमिशन, T से ट्रांसमिशन कैसे रोकेंगे, फैलने का रेट कैसे रोकेंगे, सस्पेक्टेबिलिटी कैसे रोकेंगे कि भाई किस पे आपको शक है या कौन ऐसे फैला सकता है, या आपकी कितने फैलने का रेट है, अपॉर्चुनिटी मतलब कहाँ कहाँ फैल सकता है, जहाँ लोग मिलेंगे, तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। D से है आपका ड्यूरेशन, कि कितने टाइम तक जो वो है वायरस है एक पर्टिकुलर इंसान की बॉडी में रहता है। तो ये सारा बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है शुरू से लेकर आखिरी तक। तो बेसिकली आपको एक साइंस का ओवरव्यू भी मिल जाएगा यहाँ से। तो इसलिए देखो ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट हो गया। किस सेक्शन से ये, डायरेक्टली आप लिखो GS1 हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, हेल्थ से रिलेटेड है तो।
सेम वे चलिए नीचे वाला आर्टिकल मैं आपको दिखाती हूँ। अब नीचे वाला आर्टिकल किससे रिलेटेड है? इसराइल और पैलेस्टीन से रिलेटेड है। अब ये ऐसा एडिटोरियल जो बहुत बार इसराइल पैलेस्टीन में कितने दिनों से युद्ध चल रहा था अभी पीछे, तो बार बार ऐसा एडिटोरियल आ रहा था, तो आपने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, अब हर बार सेम टॉपिक पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपको एक्सपीरियंस से पता लगेगा कि अगर मैं एक बार ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ तो मैं उसी को रिकॉल कर लूँगी अपने माइंड में, अच्छा मैंने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। इफ़ उसके बाद भी मुझे नीड फील होगी तो आई विल रीड दिस, अदरवाइज आई विल इग्नोर दिस, ऐसे पढ़ा जाता है। अब ये किससे रिलेटेड अगर मैं ये बताऊं तो ये GS2 में आपका IR इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक, आपको ये खुद सेग्रीगेट करना धीरे धीरे सीखना पड़ेगा कि कौन सा किस टॉपिक से रिलेटेड है। सेम वे अगर मैं ऊपर वाला देखूं, अभी रिसेंटली SDG रिपोर्ट लेकर आई थी सरकार, है ना, तो उस पर बेस्ड ये वाला एडिटोरियल, ये एक बेसिक समरी वे में हो जाता है कि जो भी अभी करंट इशू में चल रहा हो ये शॉर्ट समरी में पूरा ये एडिटोरियल वाले समझा देते हैं, ये अखबार समझाते हैं, हिंदू के जो एडिटर होते हैं वो समझाते हैं। वेयरएज जो ये बीच में बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे हुए हैं ना, ये वाला आपका, ये नीचे वाला, ये वाला, ये ऐसे आर्टिकल्स हम जैसे लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं, जो एजुकेटेड हो जाते हैं, जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप, मैं, हम में से कोई भी भेज सकता है। इनकी मेल ID पे भेजिए, अगर उन्हें पसंद आएगा आपका एडिटोरियल तो दे विल पब्लिश इन देयर न्यूज़पेपर। ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर द क्वालिटी व्हाट यू राइट, है ना। सेम वे लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। अब इस पे जो एडिटोरियल है, इस पे भी वही एडिटोरियल जो मेल पर भेजे गए हैं, है ना। तो अब ये जैसे ऊपर वाला आर्टिकल बहुत अच्छा है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से बताया। ये भी किससे रिलेटेड है? ये GS2 से रिलेटेड हो गया आपका, GS2 से रिलेटेड हेल्थ, GS1 में आता है आपका हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ क्या होता है, डिसऑर्डर क्या होता है, इंडिया का क्या रेट है, देखो डाटा कितने अच्छे से दे रखा है कि इंडिया कितना % वो करता है, कंट्रीब्यूट करता है, अपना एक्सपेंडिचर करता है मेंटल हेल्थ पे। वेयरएज देखो यहाँ पर रैंकिंग दे रखी है कि इंडिया की कितनी रैंकिंग है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखो सुसाइड रेट मेंशन कर रखा है कि इंडिया का क्या सुसाइड रेट है। ठीक, उसके बाद आपको बता रखे कि मेंटल इलनेस में क्या क्या आता है, एंजाइटी आती है, डिसऑर्डर आता है, या फिर क्या क्या और चीज़ें मेंशन होती हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बता रखा है कि कैसे अवेयरनेस के द्वारा, टेलीमेडिसिन के द्वारा कैसे आप इसको मेंटल हेल्थ को लोगों की ठीक कर सकते हो। देखो अभी इस वाले इशू से हमें कितनी चीज़ें जब पता लगी, डाटा पता लगा, रैंक पता लगी, डेफिनेशन पता लगी, सॉल्यूशन पता लगे, बन गया आपका आंसर। यही तो मेंशन करना होता है आपको एक अच्छे आंसर में। तो ऐसे अब देखो ये एडिटोरियल ज़रूरी नहीं है आपको एक ही बार पढ़ते ही सारा समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा, नहीं, आपको इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब उन नोट्स को आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा। अगर नोट्स बनाने का समय नहीं है तो आप इसकी कटिंग कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आप कर सकते हो, ये विद एक्सपीरियंस आपको खुद समझ में आने लग जाएंगी। ठीक, सेम वे अब जैसे ये नीचे वाला एडिटोरियल जैसे मैंने बताया था रमेश पोखरियाल जी ने लिखा है, तो कोई भी एडिटोरियल पढ़ने से पहले इवन आप ये भी देख सकते हो, यहाँ ऊपर लिखा हुआ किस बंदे ने लिखा है, उनकी फ़ोटो भी होती है यूजुअली, और नीचे उनकी पद लिखा होता है, डेजिग्नेशन लिखी होती है, तो आप पहले इन्हीं को पढ़ सकते हो। अब आपको विद टाइम जैसे जैसे न्यूज़ देखते जाओगे ना तो पता लग जाएगा कौन अपोजिशन में है, कौन लेफ्टिस्ट है, कौन राइटिस्ट है, किसके एडिटोरियल न्यूट्रल अप्रोच के होते हैं। ठीक है, हमें जो UPSC में चाहिए ना वो न्यूट्रल अप्रोच लिखनी होती है, मतलब ना ज़्यादा फ़ायदे गिनवाने होते हैं, ना ज़्यादा नुकसान, एक बीच की अप्रोच रखनी होती है। ठीक है, ये मैं हर पेपर के लिए बता रही हूँ, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर हो। ठीक है जी, तो आप इसको बेशक इग्नोर भी कर सकते हो रमेश पोखरियाल जी का, क्योंकि जो यहाँ पर मेन हेडिंग लिखी है ना उसी में पूरे एडिटोरियल की कहानी लिख दी उन्होंने। यहाँ जो पूरा फैला के लिखा है ना वो सरकार की तारीफ़ लिखी है, हमारा PM ऐसा है, हमारा PM ऐसा है, लाइक दैट। ठीक है, आपको अगर हेडिंग क्लियर हो गई कि किस जो 12th के एग्ज़ाम कैंसिल हुए वो किन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पे हुए हैं, एक तो करियर के बारे में सोचा गया, एक लोगों की सेफ्टी मतलब बच्चों की सेफ्टी, और एक एम्पैथेटिक व्यू। एम्पैथेटिक क्या होता है कि अपने आप को दूसरे की जगह पर रख के फिर सोचो कि वो किस दर्द से गुजर रहे हैं, सिंपल। तो दिस इज़ एम्पैथेटिक, पुटिंग योर सेल्फ इन अदर्स शू देन डिसाइडिंग व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, तो इन बेसिस पे डिसीजन लिया गया कि 12th का पेपर कैंसिल करें या नहीं करें, तो ये यहाँ पर मेन क्रक्स था।
ठीक, आपको जनरली किसने लिखा एडिटोरियल, किसकी डेजिग्नेशन क्या है, और उसकी जो ये थीम होती है छोटी सी 2 लाइन में लिखी होती है, उससे भी समझ में आ जाता है कि पूरा एडिटोरियल किस बेस पर है, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मेरे सिलेबस से रिलेटेड है या नहीं। ये डिसीजन आप इजीली ले पाओगे। ठीक है, लेट्स मूव अहेड, बड़ी हो जाएगी वरना वीडियो। प्लीज़, बेशक से ये थोड़ी बड़ी वीडियो हो, लेकिन मैं इसमें पूरा आपका कवर करके चल रही हूँ शुरू से लेकर आखिरी तक, तो प्लीज़ आप इसे पेशेंस के साथ बेशक 2x पर देखना, पर देखना ज़रूर। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला टॉपिक जो है ये किससे रिलेटेड है, क्वाड से रिलेटेड, चाइना बांग्लादेश के रिलेशन से रिलेटेड। तो अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि चाइना ने बांग्लादेश को कैसे धमकी दी है, क्या उनकी जियोपॉलिटिक्स में चल रहा है, क्वाड क्या होता है, क्वाड में कौन कौन मेंबर होते हैं। जैसे आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपको और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पीछे की सर्च भी करना पड़ेगा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। मे बी आपको नहीं पता होगा अभी, है ना, क्योंकि आप जस्ट बिगनर हो। तो जब भी आप पढ़ रहे हो तो घबराना नहीं है, आपको नर्वस या एंजाइटी फील नहीं करनी है कि मुझसे तो हो ही नहीं रहा। किसी से भी पहले ही दिन नहीं हो जाता है सब कुछ, इट विल टेक टाइम। जैसे मैं शुरू से बता रही हूँ, धीरे धीरे आपको स्किल आएगी, टाइम लगेगा लेकिन बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे। ठीक है, लाइक मुझे या मेरे किसी भी फ्रेंड को हमें किसी ने बताया नहीं था कि ऐसे ऐसे से पढ़ना है न्यूज़पेपर। जब हमने खुद एफर्ट किया, खुद ठोकर खाई, पढ़ पढ़ के हमने देखा, तो धीरे धीरे हमने जब देखते रहे न्यूज़पेपर को तो हमें खुद समझ में आने लग गया। और आज सब कुछ ये पता लग जाता है कि अच्छा इस वाले में ये कहा होगा, नाम से ही बंदे का पता लग जाता है ये ऐसे ऐसे व्यू लिखे होंगे इसने, तो ऐसा हो जाता है। ये विद एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन अब मैंने आपको बताया ही था कि पेज नंबर 8, 9, 10 पे वही जो नेशनल न्यूज़ होती हैं उन्हीं का एक्सटेंशन होता है, इतनी ज़्यादा काम की नहीं होती, तो आप इनको एक्सटेंड वो भी कर सकते हो। ठीक है, आप एक दो बस इसकी हेडिंग पढ़ लो। अगर हेडिंग पढ़ के आपको लग रहा है मेरे सब्जेक्ट सिलेबस से रिलेटेड है तो आप उसे पूरा पढ़िए, नहीं लग रहा है तो इग्नोर करिए। पॉलिटिक्स न्यूज़ या जो फालतू की न्यूज़ होती हैं, कहाँ क्या हुआ, डेली बेस की न्यूज़ होती हैं, उन्हें इग्नोर करिए। ठीक, इसीलिए हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ऐसे अखबार बोले जाते हैं, क्योंकि अगर आप कोई और अखबार उठाओगे ना, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ये ऐसे अखबार हैं तो कि दुनिया भर की फालतू की न्यूज़ ही लिखी होंगी, हमारे पेपर से क्या रेलेवेंट है ना, वो बहुत कम न्यूज़ मिलेंगी आपको वहाँ पे। इसीलिए बोला जाता है कि हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स आएंगे, या ज़्यादा पोर्शन आपके पेपर के हिसाब से मेंशन होता है। ठीक है, देन यहाँ पर भी वही कंटिन्यूशन में ही है, डेथ कितनी हुई है, तो यहाँ पर भी बस ये ग्राफ पढ़ लो आप, ग्राफ पता होना चाहिए कहाँ कितनी हुई है, एक ओवरव्यू पता हो तो आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में कि मैक्सिमम डेथ कहाँ पे हुई है। तो मैक्सिमम डेथ कहाँ पे हुई है उससे आप ये बता सकते हो कि वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किसी न किसी कारण फेल हो रहा होगा, वहाँ पर इतना अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई भी कमी हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, स्टाफ की कमी, नर्स की कमी, दवाइयों की कमी, कोई भी कारण हो सकता है, तो आप ये मेंशन कर सकते हो अपने आंसर्स में। ठीक है, देन कम्स योर वर्ल्ड वाला। अब वर्ल्ड वाले में अब चाइना होस्ट एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स। अब इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए, हेडिंग पढ़ लो, अच्छा ठीक है चाइना में ऐसा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाले बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है कि फूजी मोरी ने क्या किया क्या नहीं किया। मालदीव्स, अब ये इम्पोर्टेंट है कि मालदीव्स जीत गया यूएनजीए में। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परसों ही आर्टिकल में ये आया था कि इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि जब वोटिंग होगी यूनाइटेड नेशन में तो हम अफ़गानिस्तान को वोट ना करके मालदीव्स को करेंगे। तो अब ऑब्वियसली देखो मालदीव्स यहाँ पे जीत गया, तो अब हमारे और मालदीव्स के रिलेशन बेटर होंगे ना, मालदीव्स हमसे खुश हुआ होगा कि इंडिया ने मेरे को सपोर्ट किया, इंडिया ने मेरे को वोट किया, तो मे बी देयर आर हाई चांसेस कि मालदीव्स और हमारे रिलेशन और बेटर होंगे। तो ऐसे आपको जियोपॉलिटिक्स समझनी है कि देखो हर चीज़ रिलेटेड होती है, कि पहले दिन जो हुआ उससे ही आगे कुछ न्यू घटना होएगी ना, तो उसको पिछली वाली को आपको रिकॉल करना माइंड में, अच्छा ये हुआ था, अच्छा अब ये हो गया। जैसे मैंने एक रिलेट करके दिखाया ना अभी आपको मालदीव्स और अफगानिस्तान का। ठीक है, सेम वे अब मेक्सिको में न्यू प्रेसिडेंट आया, आपको जस्ट नाम पता होना चाहिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। एसएससी बैंकिंग कर रहे हो तो रटो, अदरवाइज यूपीएससी में तो कतई नहीं पूछा जाएगा कि कौन कहाँ का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है। ठीक है, अभी एफडीआई में कौन सी ड्रग आई कौन सी नहीं आई, नॉट इम्पॉर्टेंट, तो ऐसे आपको इग्नोर करना है चीज़ों को। ठीक है,
अब ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं कहीं के नीचे वाले, तो आपको ये पता होना चाहिए बमाको में। तो बमाको कहाँ पर है, आप जाकर देखो, माली में है, तो माली की राजधानी है बमाको। अब माली कहाँ है, आप जाकर देखो कहाँ है, अफ्रीका में है। तो इससे आपकी मैपिंग भी हो जाएगी। कोई भी मैप मेंशन कर रखे, कोई भी कंट्री है, कोई स्टेट मेंशन कर रखे, गो एंड सी इन द मैप। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पर अपना सिलेबस चिपका लो, वहाँ पर अपने मैप्स चिपका लो, एक वर्ल्ड का और एक इंडिया का, ताकि आप सडनली कुछ भी पढ़ रहे हो तो एकदम गर्दन उठाओ और दिख जाए सामने। सिंपल, ठीक है। अब ये से आपकी मैपिंग बेटर हो जाएगी। ये मैपिंग के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यूपीएससी में, ठीक। नाउ कम इकोनॉमिक्स के। अब इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी ने क्या प्रूव किया, क्या नहीं, नॉट इम्पॉर्टेंट। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी क्या है। गो एंड सर्च ऑन द गूगल, एनसीईआरटी क्या है, नेशनल कंपनी फॉर लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए क्या करती है, ना कि इसने क्या किया। ये जरूरी नहीं है पिरामिल के साथ क्या किया। सेम वे अब यहाँ पर क्या है, हाइटेंड स्ट्रेस कुड डिले बैंक प्राइवेटाइजेशन। अब यहाँ पर ये एनपीए से रिलेटेड है। अब आपको थोड़ा पता होना चाहिए एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो रहा था वो आसानी से हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कोई उसको खरीदने वाला ही नहीं आ रहा होगा आगे, क्योंकि इतना ज़्यादा उधार चढ़ा हुआ है बैंकों के ऊपर। एनपीए इतना ज़्यादा हो रखा है, लोगों ने जो उधार ले रखा था वो वापस चुका नहीं रहे हैं, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो इतनी स्ट्रेसफुल एसेट को कौन आगे आगे खरीदेगा, है ना। तो उसकी प्राइवेटाइजेशन में दिक्कत आ रही है। अब आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ से बस एक ओवरव्यू आप ले लो। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर में क्या अडॉप्ट किया उन्होंने, होम डिलीवरी, ये सब कुछ रटने की या बिल्कुल आपको नोट्स बनाने की नो नीड। अब यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये आपकी स्पोर्ट्स न्यूज़ आ गई। जैसे कि मैंने आपको बताया ही, अगर आपकी हॉबी है स्पोर्ट्स तो आप पढ़िए इसको, ठीक है, क्योंकि हॉबी है तो इंटरव्यू में पूछने के चांसेस हैं। वेयरएज अगर आप एसएससी, बैंकिंग या किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है। तो फॉर टुडे यही था आज के लिए हमारे की टॉपिक्स, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया आपके साथ। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, हमने बेसिकली न्यूज़पेपर के बारे में एक ओवरव्यू डिस्कस किया है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। तो फॉर टुडे दिस इज़ ओनली। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड, एंड इवन इफ़ यू वांट टू join my live classes, so I usually come live on Google Meet. In the morning I have economics class, and in the evening I have geography class. Okay, if you want to join my classes, please contact on my phone number or on my mail id I am giving in the description box. My mail id is vhimanshi7@gmail.com, whereas my phone number is 8168963270. So bye guys, it was nice interacting with you. See you soon. Bye.